8 अध्याय 26 आयत तो 40 आयत तक सब मिल के पढ़ांगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਥੋਪੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਖੋਜਾ ਜੋ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਦਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੇਲਾ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜੇ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਜੇ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਖੋਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ? ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਖੋਜੇ ਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਫਿਲਿਪਸ ਅਸ਼ਦੋਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਸਰੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत आशीष ते बरकत मिले। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा प्रभु जी इस वचन पढ़े और सुने जाने पर सबको बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दी। यहाँ हमने पढ़ा है, जब तक खुदा के वचन को कोई ना सिखाए तो हम अजीजों आगे नहीं बढ़ सकते। हर इंसान को वो जितने भी मर्जी नॉलेज रखता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन ये अजीजों एक अलग दुनिया की चीज है। दुनिया एक तरफ और खुदा का वचन जो है एक तरफ है। उसे अपनी तरफ लाने के लिए समझना है जो खुदा के लोग समझाते हैं। जैसे फिलिपस ने
उस खुदा के बंदे को समझाया जो खुदा के कलाम को पढ़ता लेकिन समझता नहीं था। ईसाया नबी की किताब उसका 53 बाब और उसकी 7 आयत में अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो सताया गया तो भी वह हंसता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी उन कूदने के समय चुप रहता है, शांत रही, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जैसे उन कतरने के वक्त भेड़ चुप रहती है, खुदावंद यीशु मसीह भी अजीजों चुप रहे और उन्होंने कोई आलतू फालतू बात नहीं की जैसे हम तमाम लोग कर जाते हैं। लेकिन हमने भी अजीजों सावधान रहना है ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर मार्ग पर जा जो यरूशलेम के गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। आपको पता है रेगिस्तानी मार्ग जो सुनसान जगह, उजड़ी हुई जगह। हम एक बार फिर खुदा के दास के साथ मिलके इसी हवाले को 26 और 1 आयत को हम सब पढ़ेंगे। रेगिस्तानी जो मार्ग था, हालेलुया। 26 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ इथोपिया निवासी खोजा जो इथोपिया दी रानी। हाँ बस हालेलुया। देखो रेगिस्तान जगह वो थी, उजड़ी हुई जगह थी, लेकिन खुदा जो हमारे हैं हर स्थान का जिस दुनिया में पाई जाती है अपनी नजरें रखते हैं। खुदावंद की नजर बहुत सारे लोगों पर, खुदा की नजर सुनसान जगह पर भी है। और यहाँ हमने पढ़ा है खुदावंद ने अपने बंदे को इजाजत दी, वह उठकर चल दिया और खुदा की बात को माना। और देखो कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशी की रानी कंदोक का मंत्री जानी के खजानची था। और वो हर साल चीजों खुदावंद की महिमा करने के लिए यरूशलेम जाया करता था। हालेलुया। इसका मतलब है वो हम तमाम भी जानते हैं वो खास एक जगह जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, यरूशलेम में उन्होंने भी उस रीत को पूरा किया जो रीत वहां पूरी की जाती थी, जो सब आम लोग करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह को भी उस जगह पर लेके गए। जब वो 12 साल के हुए थे उस स्थान पे लेके गए जहां वो रह गए थे अपने तमाम लोगों को वहां। जब तमाम लोग वहां गए थे उस जश्न के लिए, जब वो 12 साल के हुए तो खुदावंद यीशु मसीह वहां ही ठहर गए और उन्होंने आलमों के साथ बातें की, हाई प्रीस्टों के साथ बातें की, बिशप जो लोग थे उनके साथ बातें की। और वो उनकी बातों को सुन के हैरान रह गए कि इनको ये कहां से आ गया। तो अजीजों खुदावंद ने अपने लोगों को कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े जो काम है करोगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ हमने पढ़ा है जब तक उसने कहा मुझे कोई ना सिखाए तब तक मैं कैसे समझ सकता हूँ। अगर आप समझ गए हो खुदावंद की वाणी को तो उसका प्रचार करें, घरों में जा जाकर प्रचार करें, कूचों में प्रचार करें, गलियों में प्रचार करें। लेकिन अजीजों समझ सोच कर खुदा का प्रचार करना और वचन की बातें जो है लोगों को सिखाना, इसका मतलब क्या है। 2 बार हमारी बाइबल स्टडी अधूरी रह गई है। जैसे हमने कुरिन्थियन का खत 12 बाब पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो आत्मा के फल है उसके बारे में, लेकिन बीजी होने के कारण
बहुत सारा आपको पता है, गुजरे हुए दिनों में हम काफ़ी तमाम बिजी थे और काफ़ी अजीज़ों ने अपने प्रोग्रामों को भी स्पॉन्सर कराया था, लेकिन अजीज़ों हमने जो हम बात बताना चाहते थे वहाँ तक हम पहुँचे नहीं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हमने इन बातों को सीखना है। जो आत्मा के फल है जो खुदावंद अपने लोगों को बांटता है और उसका मतलब समझना, क्योंकि आत्मा एक ही है, वरदान जो है फर्क है। उन वरदानों को लेके जब अजीजों हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हैं फिर हम कामयाबी प्राप्त करते हैं। बेशक खुदावंद के कलाम को अजीजों जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं अपने आप को, तो बहुत सारे रास्ते में दुख आते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमने कभी घबराना नहीं। हमने ध्यान देना कि हमें खुदावंद ने कौन सा आत्मा का फल दिया है और किस तरीके से हमने चलना है, क्योंकि हर रोज अपनी सलीब को उठा के खुदावंद के पीछे चलना ये हमारा जो खास मकसद होना चाहिए। क्योंकि ये अजीजों खुदा का जो गुलाम है ये छोटी सी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। इससे समझना अगर तोड़ा नहीं है आत्मा का तो यीशु के आगे हम झुक सकते हैं। अगर हम ये इरादा रखते हैं कि हमने खुदावंद के कलाम को दुनिया में फैलाना है तो अजीजों खुदावंद के आगे झुकें, अपने मुंह को खोलें और वो देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा है और वो अपने लोगों को बरकत देना चाहते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। जैसे अजीजों हमने देखा है यहाँ कि फिलिप्पस के साथ जब उस खजांची की बात हुई, जो मंत्री था उसकी बात हुई, तो खुदावंद की बातें फिलिप्पस ने उस पर खोली, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तू पढ़ता है क्या इसे समझता है। और उसने कहा जब तक मुझे कोई ना समझाए तब तक मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो अजीजों जरूरी है, बेशक हम बहुत सारे भी बुद्धिमान हैं, बहुत सारी हमें अक्ल है, लेकिन खुदा का कलाम जो एक अलग चीज है, ये जब मिलता है फिर ही हम बयान कर सकते हैं। आत्मा के फल जब हम पर जाहिर होते हैं अजीजों फिर ही हम इसे जो है बयान कर सकते हैं। फिर खास करके खुदावंद की राहों को मानना और उसे उस पर चलना। जैसे इज़ाया नबी की किताब का एक हवाला पढ़ा गया है, उसकी 53 उसका बाप और उसकी 7 आयत को हमने पढ़ा है और उस पे भी हमने ध्यान देना है कि यीशु मसीह का जो स्वभाव था कैसा स्वभाव था। हमारे अंदर जो बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन जब हम उसे रियलाइज करते हैं तो सारी कमजोरियां खुदावंद उठा के ले जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है, वह सताया गया तो भी वह हंसता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बद होने के समय और भेड़ी उन कुतरने के समय चुप रहती है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह शांति से भरे हुए वो चुपचाप रहे। लोग जो उनकी मर्जी थी उनके साथ करते गए और उन्होंने अपना मुंह ना खोला। आज जी जो हम अपने आप को तमाम हम भी दोनों आपके साथ खुदावंद के हजूर झुकते हैं कि जो हमारी कमजोरियां हैं उसे खुदावंद के हाथ में दे के चलाएं और हम खुदावंद की महिमा उसकी मर्जी के मुताबिक करें। जब फिलिप्पस ने सब कुछ खुदा के वचन को सुना, खुदा के बंदे खजांची ने वचन को सुना, तो फिलिप्पस ने अवश्य ही खुदावंद की वो गहरी बातें जो वो हर साल भी जाके नहीं सीखता था और नहीं समझता था, और खुदा के बंदे फिलिप्पस ने उस पर जाहिर की और इस पर खोजे ने फिलिप्पस से पूछा, मैं तुमसे विनती करता हूँ यह बात की भविष्य देखता यह किसके विषय में कहता है। उन्होंने कहा मुझे बता
चौथी आयत को यूनुस साहब पढ़ना है। हाँ जी। चौथी आयत को, चौथी आयत, हालेलुया, हालेलुया। चौथी आयत खुदावंद जी दे खुदावंद के हाँ जी, एक्ट की हाँ चौथी जी, हाँ जी, आयत। चौथी हाँ आयत। जी, खुदावंद बरकत दे। क्यों? हालेलुया। हाँ जी, हवाले चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए कोई बात नहीं। हालेलुया, वक्त लग जाता है। 34 हालेलुया। हम्म, खोजे ने ਫਿਲਿਪਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, हाँ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤਦ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। हाँ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। तो अजीजों, जैसे खुदावंद का शुभ समाचार, खुदावंद की बातें, खुदावंद का कलाम जो हम हर रोज पढ़ते हैं, उस खुदा के बंदे को, खोजे को एक बार वचन, सिर्फ एक बार वचन सुनाया गया और उसने उससे पूछ लिया, तो खुदावंद के बंदे ने उसे बताया। तो खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए जीजो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं। जो खुदावंद की बातों को समझते हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। कोई मतलब ना समझ आए तो इसमें अजीजों हमें कभी घबराना नहीं। एयर पे भी पूछ सकते हो, हमें आप दिन भर में फोन करके भी पूछ सकते हो, अपने पास्टरों से पूछ सकते हो इस बात का क्या मतलब है। तो अवश्य ही चीजों, जब तक हमें कोई ना समझाए तो हम अजीजों प्रचार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वचन हमें बताता है, रोमियो का खत उसका 10 बाब और 15 आयत में लिखा हुआ है, जब तक भेजा ना जाए प्रचार कैसे करे। जब तक अजीजों खुदावंद भेजे नहीं, प्रचार करना हमारे लिए नामुमकिन है। खुदावंद के लिए अपना मुंह खोलना नामुमकिन है। यहाँ फिलिपस को खुदा ने भेजा कि इस रथ के साथ हो ले, तो उन्होंने भेद की बातें उस खोजे के साथ की, जो हर साल यरूशलेम में जाया करते थे और वहां से वो वैसे ही लौट आते थे। लेकिन खुदा की मर्जी अजीजों तब हो जाती है जब इंसान तैयार हो जाता है। हालेलुया। इस साल वो खजानची जो था तैयार हो गया होगा, इसलिए खुदावन ने उस अपने बंदे फिलिपस को आत्मा के द्वारा भेजा। जा इसे पूछ, जो पढ़ता है उसे समझता है। तो जीजो हर चीज का वक्त होता है। जब हमारा दिल तैयार हो जाता है, खुदावंद अपने आत्मा को भेजता है कि जा अब इससे बात कर, तो पूछ क्या जो कुछ तू करता है इसे समझता है। हो सकता कई बार इंसान अच्छा काम अपनी तरफ से करता हो और खुदा की नजर में इतना अच्छा ना हो, तो जब इंसान तैयार हो जाता है फिर खुदाबंद अपने आत्मा को भेजता, हालेलुया। आत्मा उसे सिखाए कि इसका मतलब जो खुशखबरी फैलाना है, इसका मेन जो मतलब है क्या है। क्या है? हालेलुया। तो जरूर है जीजो, खुदा के कलाम को बरीकी के साथ, आत्मा के साथ आस्ता आस्ता सीख के आगे बढ़े। वक्त निकालें, कम सोए, वक्त निकाले, कम दुनिया में अपना टाइम गुजारें, ज्यादा वक्त खुदा के कलाम में गुजारें, जैसे बहुत सारे ऐसा करते हैं। हमें नहीं पता जीजो, यीशु को पता है। हम किसी के बारे में नहीं जानते, यीशु को पता है कौन उसके साथ वक्त गुजारता है, किसको जरूरत है कि अब आत्मा को भेजा जाए और आत्मा उसे जाके सिखाए। जिस जैसे इस खजांची को खुदा ने भेज के सिखाया कि इसका मतलब जो है क्या है। नंबर 1 अजीजो, हमने खुदा के खौफ में रहना है। जैसे मेमना अपने उन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हम भी अजीजो किसी गलत बात के लिए अपना मुंह कभी ना खोले। पूरी कोशिश करे कि हमने कभी भी कोशिश करना कि कोई हमारे कहने से, बात करने से कोई दुखी ना हो।
तो खुदावंद फिर क्या करता है, अपने आत्मा के द्वारा लोगों को सिखाता है। हमने जो थर्सडे को हम बाइबल स्टडी करना चाहते थे, लेकिन पूरी बाइबल स्टडी नहीं हुई थी। समीन को ये भी साथ साथ कहेंगे, जिस दिन बाइबल स्टडी है कोशिश करें कि फोकस जो अपना है बाइबल स्टडी पे रखें, क्योंकि हम 6 दिन सारी बातें बोलते हैं एक दूसरे के लिए। सो एंड सो प्रोग्राम स्पॉन्सर करवा के गया है, किसी के घर में ये हुआ है, किसी के घर में अच्छा काम हुआ है, किसी के घर में दुख हुआ है। तो ये बातें 6 दिन में हम जो बाकी के दिन है उसमें करें। अगर आज जैसे हम खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, आप भी इसे अजीजों सीखें, आप भी ज्यादा बातें बाइबल की करें, ताकि आपको खुदावंद अपने आत्मा के द्वारा सिखाए कि हम खुदावंद के कलाम में कैसे बढ़ सकते हैं। तो आइए चंद हम मिनट और जो है कुरान्थियन की किताब, हमारी जो स्टडी हम चाहते थे कराना वो पूरी नहीं हुई थी, जो उसका कुरान्थियन पहला, और हम 5 मिनट और आपके साथ रहेंगे, फिर लाइनें खोलेंगे। आप सारी बातों पे ध्यान देना, हम क्या बात कर रहे हैं तो उस पे आपके जरूर आपने पढ़ना है। तो जैसे 12वीं आयत, जो 12 बाब और उसकी पहली आयत हम खुदा के दास के साथ मिलके पढ़ेंगे। पहला कुरान्थियन उसका 12 बाब और उसकी हम 2-3 आयतें, पहली जो है पहला कुरान्थियन 12 बाब और उसकी पहली और 2 आयत को 3 आयत को भी हम पढ़ सकते हैं कि हम जो पिछले हफ्ते में स्टडी करवाना चाहते थे और पूरी तरह ये जो है सेटिस्फैक्शन नहीं हमें मिली, क्योंकि पूरी जो हमारी बात यहाँ फिनिश नहीं हुई थी। हाँ जी 12 बाब। हाँ जी हालेलुया हालेलुया 12 बाब। चलो मैं पढ़ देती जी हूँ। शुरू ਤੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਦੇ ਸੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ सकता है। यीशु प्रभु है। हालेलुया। यीशु क्या है? प्रभु है। तो यहाँ पौलुस बोझ के साथ, फिक्र के साथ अपने लोगों को खुदा की इजाजत से लिखते हैं, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो आज हम इसके साथ साथ ये भी सीखना है, आत्मिक जो वरदान है पौलुस ने अजीजों बोझ के साथ ये खुदा की इजाजत से लिखा कि इन बातों से तुम अनजान रहो। तो आत्मा के फलों को देखना है, हमारे अंदर कौन सा आत्मा का फल है, और जो अजीजों खुदा देता है उसे हमने सीखना है। हो सकता आपने बहुत बार इसकी स्टडी की होगी, लेकिन अगर आज हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपने फल को, जो आत्मा का फल दिया गया है, क्योंकि कई प्रकार के फल हैं, लेकिन खुदावंद जो जिसे चाहता है वो खुदा दे देता है। तो खुदावंद अपने लोगों में तब अपने आत्मा के द्वारा अपने दासों को, अपने बंदों को भेजता है जब व्यक्ति तैयार हो जाते हैं कि अब इन्हें जरूरत है, अब इन्हें बता कि जो तुझे वरदान मिला है इसे समझता है। अगर समझता है तो इस तरीके से इसे बयान दुनिया में करना है। हालेलुया। तो जब लोग अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे चलते थे, वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ। यहाँ खुदा का बंदा हमें सावधान करता है, मुझे भी, मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को, मेरी टीम को यहाँ खुदाबंद होशियार करते हैं। इसलिए मैं तुमसे चेतावनी देता हूँ
कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि मैं यीशु सरपत हूँ, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। जब तक आत्मा हमारे अंदर काम नहीं करता तब तक अजीजों अगर हम बोलते रहेंगे तो हमारी गलती होगी। अगर हम अपने दिमाग से कुछ कहते रहेंगे तो ये हमारा जेल है, इसमें हम कोई तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आत्मा के द्वारा हम चलते नहीं तब तक अजीजों हमारी कोई भी तरक्की नहीं। रूहानी धन चाहे हमारे पास जितना भी हो, जो कुछ भी मर्जी हो, बच्चों की बरकत हो, घरों की बरकत हो, धन की बरकत हो, ये अजीजों जो है अलग बात है। जो बिब्लिकल है, जो खुदावंद की बातें हैं, वो अलग चीज है। वो एक तरफ है, दुनिया एक तरफ है। तो हमने देखना है आत्मा के फलों से जो हमें मिला है उसमें से हमें कौन सा मिला है और किस तरीके से हमने चलना है। बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है, इसलिए हमें सावधानी के साथ खुदा का काम करना है। जो वरदान दिए गए हैं, दान देने का वरदान दिया गया है, तो देखना है आपको खुदावन ने वरदान देने के लिए, जो दान देने के लिए आपको कहाँ खुदावन ने भेजा है। अपने तोड़े को बहुत बार हम भूल कर खुदावन से बरकत जो हमारी जो है अधूरी रह जाती है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं 12 की 12 आयत, जैसे हमने 12 की 4 आयत के हमने 11 तक पढ़ा था थर्सडे को, के वरदान किस प्रकार के हैं जो खुदावंद चाहता जिसे उसे दे देता है। और आपने हमारे साथ पढ़ा था, आपको हो सकता याद होगा, अवश्य ही याद होगा, क्योंकि आप बहुत सालों से खुदावंद के कलाम को पढ़ते हो। तो हमने इस हिस्से को किसी ने भी नहीं पढ़ा था। जो खास बात है हम अजीजों उसमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए खुदावंद के आत्मा ने हमें बताया कि जरूरी है हम लोगों को बताएं। 12 की 12 आयत को देखेंगे हम। हालेलुया जी। कुरांथियन, पहला कुरांथियन 12 बाब ਦੀ 12 ਆਇਤ। ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ पीण दे लिए दिता गया है। हालेलुया। तो अजीजों, बेशक हम कोई भी वरदान लिए हुए हैं खुदा के, जो आत्मा के फल है, फर्क है। कोई भी है आपके पास खुदा का वरदान, लेकिन आत्मा एक ही है। तो हमें भी अजीजों सबको एक ही होना चाहिए, एक मन के और एक ही बात करनी, एक ही विचार और एक ही जो हमने सोच में रहना है, क्योंकि हम सब इन वरदानों को पढ़ते हैं जो खुदा देते हैं, और हम सब एक है चीजों। वरदान जैसा भी है आत्मा के द्वारा है, चाहे कोई दास है चाहे कोई आजाद है। तो चाहे कोई दास चाहे कोई स्वतंत्र, आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम तमाम जितने बपतिस्मा लिए हुए हैं, हमने क्यों बपतिस्मा लिया है? फिर हम 13 आयत को पढ़ते हैं। हालेलुया। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। हालेलुया। हम अजीजों एक हैं जो खुदा को मानते हैं, सब एक हैं। फिर अजीजों नाराजगियां या गुस्से गिले क्यों हम करते हैं? फिर हमें एक होके चलना है, ये खुदा का हुक्म है अजीजों। जैसे बहुत सारे अंग हैं, लेकिन अजीजों जो बॉडी है, जिस्म है, एक ही होता है। तो हमने आज जरूर है कि हमने सीखना है, जो आगे हमने पढ़ना है, सारे ही पढ़े इसको। जैसे हमने आज शुरू किया था रसूलों के किताब उसका 8 बाब 26 आयत से फिलिप्पस को खुदा ने भेजा, जो खजांची हर साल खुदाबंद की महिमा प्रस्तुत करने के लिए यरूशलेम को जाया करते थे। इसाया नबी की किताब पढ़ रहे थे और खुदा ने देखा कि वो पढ़ रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं है। पढ़ने से अजीजों हमें अगर समझ ना आएगी तो पढ़ने का भी हमारा अजीजों ज्यादा फायदा नहीं है। हम चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन समझे कि खुदा के कलाम के अंदर जो हमने पढ़ा है इसका मतलब क्या है। जरूर है अजीजों इस मतलब को समझे। अगर आप कहते हैं अपने बॉडी के हाथ को कि ये हाथ नहीं है, तो क्या अजीजों वो हाथ नहीं है? हमारे कहने से तो हाथ पाँव नहीं बन जाएगा, वो तो हाथ ही रहेगा। तो हमने अजीजों सीखना है वरदान जो अलग अलग है, जैसे अंग हमारे अलग अलग है, वरदान भी अजीजों इसी तरह से अलग अलग है। तो हमने सीखना है हमारा हाथ क्या कर सकता है, तो हमने सीखना है हमारा पाँव क्या कर सकता है। पाँव अजीजों पाँव का काम करेंगे, हाथ हाथ का काम करेगा। इसी तरह से वरदान जो खुदा के हैं, अगर प्रचार करने का वरदान दिया गया है तो प्रचार करें। अगर प्रार्थना का वरदान है तो प्रार्थना करें। अगर दूसरों को सिखाने का वरदान दिया गया है तो दूसरों को सिखाएं। आप चाहो तो ये सारे के सारे तोड़े यीशु से ले सकते हो। ये हमारी अजीजों अपनी मेहनत है। अगर हम खुदा के साथ अजीजों वफादार हैं, उसके फलों को कसरत के साथ, डर के साथ, खुदा के खौफ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम सारे ही फल यीशु से ले सकते हैं। क्योंकि खुदावन ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा कभी ये नहीं कहेंगे कि तुझे एक वरदान मैंने दे दिया है, अब दूसरा वरदान क्यों मांगता है। हरगिज़ नहीं मेरा यीशु राब का यीशु कहेगा, बल्कि खुदावंद उसे अपने मन में वेलकम करेगा। आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, अगर तू प्रार्थना कर रहा है तो तू प्रचार भी करेगा। तू प्रचार कर रहा है तो तू दूसरों की मदद भी करेगा। बहुत सारे अजीजों काम जो खुदा के हम कर सकते हैं। हमारी अपनी मेहनत है और हमारी अपनी सच्चाई है। क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं अजीजों करते, हम दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं, चर्चों के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमारी समझ से बाहर सारे काम चले जाते हैं। इसलिए सीखने के लिए अजीजों सब अपने आप को तैयार करना है। अब हम अपने समीन के लिए लाइनें खोल रहे हैं, तो आपने सीखना है आज